اچھا آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کا وہ مسئلہ ان کے نا شوہر کا مسئلہ ہے تو یہ اس لیے اچھا تو ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں، ابھی تو کام کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ۔ جی میں نے ان کو سمجھایا ہے، میرے مسئلے کا تو کوئی حل نہیں نکالا۔ یہ کام کے مسئلے حل ہو جائیں، کام کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے، محنت کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کرنی چاہیے محنت، اور یہ بچہ بھی ہے چھوٹا ہمارے ساتھ، بچوں کا ان کے شوہر کو نا ان کے بچوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، ان کا بھی مستقبل ہے۔ بس ہمارے علاقے کے بھی مسئلے ہیں، ان کے گھر کا بھی مسئلہ ہے شوہر کا، اور ایسے ان کے شوہر کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کچھ، کیا مسئلہ ہے؟ گھر کا، اس کے گھر کا ہے، بچوں کا ہے، پریشان کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ کیا ہو گیا یہ؟ کیا سن رہا ہوں؟ کیا کر سکتے ہیں بس۔ اچھا یار آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا کہ مل جل کے ہم اس پرابلمس کو حل کریں۔ کیا کر سکتے ہیں بس، ابھی آپ ایسا کریں کہ ان کا مسئلہ حل کرا دیں۔ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگ، انتظار ہے میرا، بتائیں گے وہ سب کچھ مجھے جو کر رہے ہیں آپ لوگ، یا میرے کام کو کہاں تک آگے پہنچایا۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، بڑا مطمئن ہوں میں آپ سب کے کاموں سے۔ آپ لوگ جس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں چل رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت خوش آئند ہے، کیونکہ جب تک عوام اور ان لوگوں کو جو مصیبت میں ہیں، ان کو ہم جب تک ان کی مشکلوں سے نجات نہیں دلا دیتے ہیں، جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں بتا دوں یہ کہ لڑکوں یا آدمیوں سے زیادہ یہ لڑکیاں یا عورتیں میرے ساتھ بہت کام کر رہی ہیں، اور واقعی دل سے کر رہی ہیں۔ جبکہ ان کے گھر میں بھی گیس کی پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن اپنی اس پریشانی کو ایک طرف کر کے ان لوگوں کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو بہت مشکلات میں ہیں، اپنے گھر کو بھول گئے۔ آپ سب لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو صدقے دل سے سلام کرتا ہوں، میں آپ کے دل کو بہت عزت دیتا ہوں، آپ کے کام کو میں بہت ریسپیکٹ دیتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میرا فخر ہے۔ بس ہمیں ان لوگوں سے بھی نمٹنا ہے جو راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کل میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور بھوک کے بہانے آیا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو کھانا وانا کھلایا تو اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کام اچھا کام کر رہا ہوں، نیکی کا۔ تو اس نے مجھے کوشش کی میں راستے سے بھٹک جاؤں، مجھے بہکانے کی کوشش کی کہ آپ بیکار کر رہے ہیں، آپ کیا فائدہ ہے اس کو، کیوں دوسروں کی مصیبتیں مول لے رہے ہیں۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے چپ رہا اور اس کو پورا کھانا کھانے دیا۔ جیسے اس نے کھانا ختم کیا اور میں نے اس کو فوراً بھگایا اور اس کو ہدایت کی کہ آئندہ خبردار کسی کو تم نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے راستے میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو ہمیں روکنا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ آیا تھا مجھ سے کھانا کھانے کے لیے، اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے، اور جب میں نے کھانا دیا ہے تو مجھے ٹوک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کام مت آئیں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، کوئی آپ کے کام کو سراہیں گے نہیں۔ لیکن مجھے کچھ کسی سے مدد نہیں چاہیے، کوئی مجھے سراہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہی بات کر کے میں نے اس کو بھگایا اور اپنے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میرے ساتھ کام کریں گے آپ لوگ، اور ایسے لوگوں کو رد کر کے مجھے بتائیں گے کون کون لوگ ہیں۔ سب کو نکالنا میرا کام ہے، ہر شخص کو نکالنا میرا کام ہے جو مشکلات پیدا کر رہا ہے۔
गैस का मसला कितना बड़ा मसला है। हमने 30% लोगों को ये गैस मुहैया करवा दी है। उसी टाइम पर गैस आ जा रही है जो टाइम है। अब बाकी 70% हैं, उनको भी हल करना है मसले के। इस मसले को लेकर उनका भी मसला हल करना है, जब जाके हमें कामयाबी हासिल होगी। मुझे पता है कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो। तुम्हें से ऐसे लोग मिले हैं जिनको तुमने वो मसले हल किए हैं। मुझे बताया उन लोगों ने, आप लोगों के नाम लेके बताया कि हमारे घर में सहूलत दी है। हम आप काम करने नहीं गए तो हमें दिन का खाना दिया है उन्होंने, और हमें एहसास दिलाया कि नहीं आप अपना काम करें, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं, बाकी काम हम करेंगे, और हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, वो शख्स फरते जज्बात से रो पड़ा, शुक्र अदा करने लगा मेरा आप सबका। और कितनी खुशाइन बात है कि लोग हमारी इस बात को समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं। वो हम आज 10 लोगों की मदद करेंगे, कल हम 100 की करेंगे, 1000 की करेंगे। हम सिर्फ इसी इलाके तक महदूद नहीं रहेंगे। हर इलाके को ख़त्म करना है मसलों से, उन मसलों को ख़त्म करना है हर इलाकों से। ये हमारी कामयाबी है। वो इलाके हमारे हैं, हमारे शहर के हैं, हमारे मुल्क के हैं, और उन सब के मसाइल को लेके चलना है। हमने आगाज़ किया है अपने इलाके से। 30% लोगों के काम हो चुके हैं, 70% भी हो जाएंगे। फिर भी हम नहीं बैठेंगे, अपना काम जारी रखेंगे, पूरे सब लोगों को लेकर चलेंगे, सब लोगों की मदद करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हिदायत की है, हम वो काम कर सकते हैं, वो सलाहियत दी है। हमें बोलना आता है, समझाना आता है, हमारी जेब ने इतनी इजाज़त दी है कि हम लोगों की मदद करें, तो जब जाके हमें सुकून मिलेगा। हम अपने आप को एक तरफ बिठा नहीं सकते कि कमरे में बैठ गए अपने याशी में कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी मराद से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग जो मजबूर हैं, बेकस हैं, मजलूम हैं, जो खा नहीं सकते इसलिए कि गैस नहीं है, बच्चों रो रहे हैं कि उनके गैस की वजह से खाना नहीं है, फिर मजबूरन होटल से लाते हैं, कितना महंगा। सबको मैंने कह दिया है कि जब तक गैस ना आए उन सबको खाने भी दो। अल्लाह देगा हमें, अल्लाह हमारी मुश्किल ख़त्म करेगा, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ही की वजह से हम ये काम कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और ये काम जब तक करते रहेंगे, जब तक एक एक मसला हल नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरी कोशिश है, और मैं चाहूँगा मैं कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह से दें जिस तरह आप कर रहे हैं। फिर देखना हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा मुल्क कितनी तरक्की करता है। जब हम लोगों को खाने के लिए देंगे तो उनके मुंह से शुक्र के साथ साथ हमारी तारीफ निकलेगी, हमारे लिए दुआएं निकलेंगी। हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें दुआएं चाहिए। दुआओं से हम आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं, अल्लाह हमारी मदद कर सकता है उन दुआओं से। उन दुआओं की बदौलत हम बहुत सारे लोगों के काम निपटा सकते हैं। सब अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, सबका मशकूर हूँ कि सब मेरा साथ दे रहे हैं, एक एक पल, एक एक लम्हे। और मैं सिवाय दुआओं के या आपको सराहने के कुछ नहीं कर सकता। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, कल उसका फल मिलेगा हमें कोई लालच नहीं है इन लोगों से, बेचारों से जो बेकस हैं, मजलूम हैं। कोई लालच नहीं है, हमें लालच है अपने अल्लाह ताला की खुशनुदी से, अल्लाह ताला को खुश करने से। हमारा ये टारगेट है, हमें अल्लाह ताला की दी हुई मराद से अल्लाह ताला के बंदों की मदद करना है और उनके मसाइल को हल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, हिदायत की है, सलाहियत दी है। हम कर सकते हैं, तालीम याफ्ता हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैसे भी दिए हैं, हमारे पास मसाइल नहीं बल्कि वसाइल हैं, तो उन पर इन सब का हक़ है, उन वसाइल पर सब का हक़ है। और हम देंगे, एक एक शख्स को मसाइल देंगे। उनको हमने ये भी कहा है, हम आपकी परेशानी तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे कि चलो हम खाना दे रहे तो हम बैठ जाएं। नहीं, अपना काम पाबंदी से करें, कोई काम को अपना ना रोके, लेकिन हम आपकी परेशानी को हल करके रहेंगे। और कोई परेशानी होगी हम वो सारे मसले हल करेंगे। अगर आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, हम देंगे आपको,
हम देंगे आपको, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। आप लूज होकर नहीं बैठ जाएंगे एक तरफ कि चलो आ रहा है खाना। हमारे यहाँ पर बेशुमार लोगों ने ऐसे लोगों पे एहसान करना शुरू कर दिए हैं। हर चौराहे पे ऐसा नज़र आता है कि लोग खाना खा रहे हैं फ्री में। हम गलत भी कर रहे हैं, ये सही तो कर रहे हैं। सही इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग जो मुसाफिर हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, खाना खाने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों को हम सराहेंगे नहीं, हम मना भी नहीं कर सकते कि खाना अल्लाह की देन है, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ तावन करेंगे जो कि अपना काम भी करते रहें, अपने आप को रोके नहीं, और अपने मसाइल को हल करने के लिए हमारे लिए दुआएं करें। हम उनके लिए कोशिश करते रहेंगे। उनकी जिद्दोजहद चलती रहेगी, हमारी जिद्दोजहद चलती रहेगी। हमारी परेशानियां अगर हैं तो हम उनको बालाए ताक रख के उनकी परेशानियां हल करेंगे। हम अपना काम फिर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं अपना काम, अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं बाद में भी। कोई हमारी परेशानी इतनी टिपिकल नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल परेशानी नहीं है जिसे हम कोई परेशान हो मज़ीद, नहीं। हम उनको एक तरफ रखते हैं, एक तरफ रखते हैं, और हम उनकी मसाइल हल करेंगे, उनकी परेशानी हल करेंगे। जो बेकस हैं, मज़लूम हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी मराहत नहीं है। खुश रहो तुम सब लोग, मैं बहुत खुश हूँ आप सब से। शाबाश, मैं बहुत सराहता हूँ, और सब के लिए मैं अनकरीब एक पार्टी का एहतमाम कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, खुश रहो। तुम लोगों ने मुझे ज़िंदा और जावेद कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग मेरे साथ वो हाथ पे हाथ मिला के चल रहे हैं। बहुत खुश हूँ मैं। ये तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी देख रहा हूँ ना मैं, ये उसी की खुशी कि तुम लोग काम कर रहे हो लोगों के लिए, लोगों के काम आ रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम औरत हो के, फीमेल होकर मेरे साथ चल रही हो, अपनी परेशानियों को भूल कर लोगों के काम आ रही हो, उनके मसाइल हल कर रही हो, उन्हें खाना दे रही हो, पीना दे रही हो, उनके गैस के लिए भाग दौड़ कर रहे हो। वाह वाह, कमाल है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे हर लोग अगर करने लगें तो कोई परेशानी किसी के पास नहीं बचेगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। खुश रहो, शाबाश। बहुत इत्मीनान है मुझे। आज हमने 30% टारगेट किया है, बाकी भी जल्द से जल्द हल कर लेंगे, और इसके बाद हम दूसरे इलाकों को भी देखेंगे जहाँ लोग मुश्किल का शिकार हैं। हम सारी मुश्किलें हल करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते हैं उन्हें जगाएंगे, उठाएंगे उनको। शाबाश, खुश रहो, सब खुश रहो। इन सब के लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करो। एक पार्टी मेरी तरफ से है, कोल्ड ड्रिंक, जो खाना चाहते हैं ये लोग सबको दो, ये मेरी खुशी है। शाबाश, ले जाओ उनको, जो खाना चाहते हैं इन सबको खिलाओ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं, और बहुत सारे लोग मेरे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं, सब इस मसले को हल करने के लिए। जो आवाम के हैं, जो आवाम परेशान हाल है, ख़ास तौर से गैस के मसले के लिए, और आप सब की मदद से ये काम हो रहा है। और कोई अकेला नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों का साथ ना हो, आप जैसे लोगों का, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है ये ज़ाती बात है मेरी, जो कि मैं महसूस करता हूँ। मैं अकेला कितना भी चलता उस मंजिल पर नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मैं उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगा जो लोगों के मसले हल करने की मंजिल है। एक एक घर को लेकर तुम चल रहे हो, मुझे सब पता है। तुम लोग मेरा फ़ख्र हो। मुझे बहुत पता है कि तुम लोग एक एक घर को लेकर चल रहे हो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ दे रहे हो तुम, और ये भी उनको जगा रहे हो कि ये सब कुछ देखकर बैठ मत जाओ, काम करते रहो। और माशाअल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। इसमें तुम सब लोगों की जिद्दोजहद है। तुम्हें खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए तुम काम कर रहे हो।
तुम खुश हो और होना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, उसने तुम्हें चुना है उन लोगों की मदद के लिए, और तुम कर रहे हो उन लोगों की मदद जो मजलूम है, बेकस है, सब उन सब के लिए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। मैं बड़ा खुश हूँ, और सारे मसाइल आप सबकी मदद से हल होंगे। एक एक घर के मसले हल होंगे। लोग मिसालें देंगे हमारे इलाके की कि यहाँ के लोग जाग गए हैं, अपने जिद्दोजहद में खुद लगे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठकर नए काम कर रहे हैं, अपने रोज़गार भी कर रहे हैं और अपने आप सब कर रहे हैं। सर, हमारे सियासतदानों का मकसद क्या है? तुमने कभी सोचा है ये सियासतदान क्या करते हैं? क्यों आते हैं ये लोग? लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उस सीढ़ी पर क्यों चढ़ जाते हैं जहाँ चढ़ के लोग नज़र नहीं आते हैं? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए। इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं ये, और लोगों को कहते हैं कि हम आपके मसाइल हल कर देंगे, एक एक मसला हल करेंगे, गले लगा लगा कर उनको यकीन दिलाते हैं। लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो यही लोग जो वोट देने वाले हैं उन्हें नज़र नहीं आते, इसलिए कि उनका मकसद होता है, उनका एक मकसद ये होता है कि जो करोड़ों रुपए हमने खर्च किए इलेक्शन जीतने के लिए, वो पहले हासिल कर रहे हैं, वो पहले हासिल करने हैं, उसके बाद उसका मुनाफा हासिल करना है, सूद। तो उस वक्त तक वो अवाम नज़र नहीं आती, अवाम बिलकती रहती है, रोती रहती है, याद दिलाती रहती है कि तुम इलेक्शन के वक्त हमारे पास आए थे और गिड़गिड़ा रहे थे वोट के लिए, और आज हम आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि आपने हमारा काम नहीं किया, कोई मसला हल नहीं किया। तो फिर वो यकीन दिलाते हैं। फिर जब वो मुनाफा और सूद हासिल कर लेते हैं तो भी इसके बावजूद वो इतना कुछ नहीं करते हैं कि जिससे अवाम मुतमईन हो। वो जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि अगर वो अवाम के सारे काम कर देंगे तो कल वोट कौन देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन देगा वोट? उनके सारे मसले हल हो गए। ऐसे ही है सर। हाँ, जब मसले हल हो गए तो वोट लेना तो ख़त्म। उनके सामने हम जाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएंगे। क्या बात। ये है सियासतदानों का काम। और फिर वो जाते हैं, फिर उनके चमचे जो हैं वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और फिर उसमें से बेशुमार आवाम मजबूर होकर वोट देती है, फिर वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, और इसीलिए करप्शन का एक बड़ा बाजार बना देते हैं। हाँ सर। हमारी तमाम सियासतदान, बड़े बड़े लीडर सब करप्शन में इतने गर्क हैं, इतने डूबे हुए हैं कि वो साहिल पर नज़र ही नहीं आते। और हमारा मुल्क डूब रहा है परेशानियों में, उन लोगों की परेशानियों में जिनके मसले हल होने थे, वो हमारे मुल्क के मसले हैं। बिल्कुल। अगर पानी, बिजली, तालीम, सेहत का मसला हल होगा तो पाकिस्तान, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, लोग खुश होंगे। लेकिन नहीं हो रहा। ये सियासतदान इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं सियासतदान। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन पकड़ेगा इनको? कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनके लाने वाले इनके ऊपर हैं, और उनके ऊपर और बड़े हैं। किसको आप पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ सकते। तो ये हमें मसले अपने खुद कर रहे हैं ख़त्म। इसीलिए जो मैंने तहरीक शुरू की हुई है, ख़ास तौर से आजकल गैस की, वो कामयाब करनी है। ठीक। चलो चलते हैं सर।